And we welcome you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Yeah, let me put you in. Praise the Lord. Can you hear me, brother? Yes. The connection seems to be going in and out. Can you hear me? Yeah, I can hear you very well. You can hear me okay? Yeah. Everybody can hear. सब लोग सुन सकते हैं ना? Okay, Yeah, they wonderful. can hear you. Praise God. Very nice to see you all. God bless you all this morning. How are you all? These beautiful young people. Praise the Lord. How are you all today? Doing well today. Yeah, everybody is doing well by God's grace. Great. Praise the Lord. Well, Pastor Cigar asked me to share some words with you. So I had some time to do that, so I will do that. So मैंने जैसे अब आज ये ब्रदर से प्रभु का वचन से कुछ शेयर करने के लिए बोला और उन्होंने ये दिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं. Amen. Well, we're living in very challenging times, very interesting and difficult times right now. हम लोग अभी बहुत सारे मुसीबत समय में हो जी रहे हैं. And many people are looking at all the things that are going on in the world. This coronavirus scare and many other conflicts and problems going on in the world. People are paying attention to these things. देखिए अभी ये सब का ध्यान को आकर्षण के लिए. And we as believers in Christ, we have to decide what our focus is going to be. What are we going to spend our time focusing on and paying attention to? अभी पूरी दुनिया ये चीजों में अपना समय बर्बाद कर रही है. लेकिन हम ईश्वर पे भरोसा करने वाले लोग हमें हमारा समय इस चीज में हम लोग अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं, वो देखने की जरूरत. The scripture tells us that to walk with Christ is not a natural walk. It's not a walk like everybody else in the world. अब देखिए बताता है कि ईश्वर के साथ चलने का मतलब जो दुनिया के लोग. This is a supernatural walk. The scripture says that we should not be fleshly like worldly people and walk just like mere normal people in the earth. I don't know, brother. I don't know if this is going to work. This connection doesn't seem to be working. Let me. It seems that your connection is very bad there right now. Hello. Yeah. Sorry, sir. I have just fixed my network here. Okay. Yeah. Now I think. Yeah. Are we good? Yeah. Yeah, you can hear me? Yes. The sound is good now. Wonderful. Yeah, we can hear you, sir.
Okay, wonderful. So this is not preached in the church very much. In the church, Christians mostly understand that they are practicing a religion called Christianity. अब देखिए ये आज हमारे चर्च में हमारे जो चर्च में आते हैं वो लोग को ये समझने की जरूरत है कि हम लोग क्या ये क्रिश्चियन धर्म को अपना रहे हैं या तो कोई दूसरा चीज को. And this is a different religion than their neighbors have. Their neighbors may be Muslims, they may be Hindus, they may be Buddhists, whatever they may be. And Christians see themselves as Christians, and they are part of the Christian religion, and they go to church. अब देखिए जो लोग चर्च में आते हैं वो लोग अपने आप को क्रिश्चियन बोलते हैं क्योंकि जैसे मुस्लिम है हिंदू है और लोग हैं वो लोग का धर्म को देख के हम लोग थोड़ा अलग है ना तो अपने आप को वो लोग क्रिश्चियन कहते हैं. They believe in a different God. They believe in a God called Jesus Christ, whereas the other religions believe in other gods. They believe in Allah, they believe in Shiva and the gods of Hinduism. They believe in Buddha, whatever they believe in. And Christians believe in Jesus. अब देखिए और धर्म के लोग दूसरे भगवान पे भरोसा करते हैं जैसे शिवा हुआ कोई किसी भगवान पे भरोसा करते हैं लेकिन जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो क्रिश्चियन डिफरेंट है वो लोग को नहीं करते हैं वो लोग दूसरे भगवान को मानते हैं इसीलिए चर्च में आने वाले लोग सोचते हैं हम लोग क्रिश्चियन है क्योंकि हम कहाँ जाते हैं चर्च में जाते हैं वो लोग का भावना इसी है. Religions have existed since the beginning of time, and the world looks at Christianity as just another religion. And unfortunately, many Christians in the church also look at Christianity as their religion. देखिए सबसे विडंबना की बात ये है कि जब से दुनिया का उत्पत्ति हुआ एक धर्म का सृजना हुआ जब धर्म का सृजना हुआ आज दूसरे लोग क्रिश्चियन को भी एक धर्म समझते हैं क्रिश्चियन को भी धर्म समझते हैं लेकिन बहुत सारे क्रिश्चियन चर्च में आने वाले लोग भी इसको एक धर्म की तरह सोचते हैं. But if that's all that sets Christians apart, if that's the only thing that's different about Christians, then there's nothing really very powerful about being a Christian. अब देखिए यदि हम भी दूसरे धर्म के तरह एक ये धर्म संगठन है तो दूसरे धर्म और हमारे धर्म पे फर्क नहीं है कोई फर्क नहीं है. If Christianity is just another religion, if Jesus is just a different God, then there's really nothing very special about Christianity. As I said, there have been religions and gods since the beginning of time. अब देखिए ये बात को समझ ली यदि क्रिश्चियनिटी भी दूसरे धर्म के तरह एक धर्म का ग्रुप है तो क्रिश्चियनिटी में कोई ऐसा दम नहीं है. क्रिश्चियनिटी दूसरे धर्म के तरह एक धर्म ग्रुप नहीं है ये एक धर्म संस्था नहीं है ये बातें बोल रहे हैं. And if that's the case, then if you are a Christian, you're just walking in a natural way like everyone else. You're just a mere man like everyone else, and you just have a different religion and a different God. अब देखिए यदि क्रिश्चियनिटी भी एक धर्म होता तो आप भी दूसरे धर्म के तरह है आप भी एक दूसरा भगवान को मानते हैं दूसरा रहन सहन को मानते हैं दूसरा चाल चलन को मानते हैं इसीलिए क्रिश्चियनिटी जो है एक ये धर्म नहीं है ये बातें मैं जोड़ दे रहे हैं. All religions have a book or books. सब हर एक धर्म ग्रंथ के पास किताबें हैं. Yeah, the Muslims have their book, the Quran. The Hindus have their book, the Vedas, the Buddhists have books, the Jews have their book of the Old Testament and the Torah, so to speak. अब देखिए हर एक धर्म ग्रंथ के लोगों के पास अपना अपना किताब है धर्म ग्रंथ है ना मुस्लिम के पास भी है हिंदू के पास भी है बुद्धिस्ट के पास भी है सबके पास अपना अपना धर्म ग्रंथ है. So this is not really something special either, that you have a book called the Bible, because other religions also have their holy books. So और धर्म के पास भी वो लोग का धर्म ग्रंथ है तो हम लोग के पास भी धर्म ग्रंथ बाइबल है.
तो ये दूसरा धर्म से हमारा धर्म अलग हमको दिखाई नहीं देता है। So what makes being a Christian and what makes Jesus Christ different from all the other religions? अब देखिए ये बात हमको समझने की जरूरत है, कौन सी चीज है एक मसीह को मानने वाला, यीशु मसीह को मानने वाला को दूसरे लोगों से अलग करता है। ये बातें को समझने की बहुत जरूरत है। यदि Listen to दूसरे me. धर्म के अनुसार वो लोग अपना रीति रिवाज मानते हैं, हम लोग भी अपना रीति रिवाज मानेंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। सो कौन सा चीज हमें उन लोग से अलग रखता है, ये चीज जानने की जरूरत है। Yes. Listen to me well now. The first thing that makes Jesus and being a Christian different is that being a Christian is not a religion. अभी ध्यान से सुनिए, पहला चीज हमें दूसरे धर्म से अलग रखने का कारण क्या है? ये जो क्रिश्चियनिटी है, जिसको लोग क्रिश्चियन धर्म बोलते हैं, ये एक धर्म नहीं है। Listen to me well again. Jesus is not the God of the Christians. He's not the God of the church. अब देखिए ये बात ध्यान में रखिए, यीशु क्रिश्चियन लोगों का भगवान नहीं है, यीशु चर्च का भगवान नहीं है। He's not the God of a religion called Christianity. वो एक धार्मिक संगठन क्रिश्चियन लोग का भगवान नहीं है। Jesus is the God of all men. लेकिन यीशु सारे दुनिया का भगवान है। हालेलुया। Do you understand that? केवल एक क्रिश्चियन लोगों का नहीं, पूरी दुनिया का वो ईश्वर है। Because even Christians behave as if Jesus is just the God of the Christians, the God of the church, and the other people who have other religions, they have different gods. अब देखिए बहुत सारे समय में क्रिश्चियन लोग, ये उनके अंदर ये बुरा चीज है, वो लोग यीशु को चर्च का भगवान सोचते हैं या क्रिश्चियन लोगों का भगवान सोचते हैं, लेकिन ये गलत है। Jesus did not come. God did not take the form of flesh to come and start a new religion called Christianity. अब देखिए यीशु दुनिया में आने का कारण एक नया धर्म बनाने के लिए आया नहीं है। क्या नहीं आया है? एक नया धर्म बनाने के लिए आया नहीं है। Jesus, God in the flesh, did not come to start a new institution and a new religious temple called a church. यीशु दुनिया में एक नया धर्म संस्थान खोलने के लिए नहीं आया है, जिसको हम चर्च बोलते हैं। ये बनाने के लिए यीशु दुनिया में नहीं आया है। Jesus didn't die on the cross only for the sins of the Christians. और यीशु सूली पे केवल क्रिश्चियन लोगों का पापों के लिए मरा नहीं है। Jesus didn't rise from the dead for the church. अब यीशु चर्च के लिए, कलीसिया के लिए मर के तीसरे दिन जीवित नहीं हुआ। Jesus didn't come to preach and teach to the church and to the Christians. When Jesus came, there was no church and there were no Christians. अब देखिए यीशु क्रिश्चियन लोगों को पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए नहीं आया है, क्योंकि जिस समय यीशु मसीह आता उस समय क्रिश्चियन धर्म नहीं था, क्रिश्चियन लोग नहीं था। Amen? Amen. When Jesus was on the earth, if you read the Gospels, there's no such thing as a church. There's no such thing as a Christian. अब देखिए जब यीशु दुनिया में आया, जब दुनिया में था, उस सब यीशु के समय में ना चर्च था, ना कोई क्रिश्चियन लोग था, कोई भी नहीं था। Jesus came into the world, God taking on the form of flesh to die for all men, to save all men, regardless of their race, culture, and religion. अब देखिए ये बात ध्यान से सुनिए, यीशु दुनिया में आया है सब लोगों के पाप के लिए मरने के लिए। कोई धर्म नहीं, कोई स्पेशल लोग नहीं, हर एक लोगों के लिए यीशु दुनिया में आके मरने के लिए आया है। परमेश्वर खुद ही। Jesus is not calling people to become Christians. Jesus is not calling people to join churches. Jesus is not calling people
to become a part of the religion of Christianity. अब यीशु लोगों को चर्च में ज्वाइन होने के लिए नहीं कहता है, यीशु लोगों को धर्म बदलने के लिए नहीं कहता है। Jesus is calling all men everywhere, regardless of their race, regardless of their religious background, regardless of their culture and language, to become his children. अब यीशु सारे दुनिया के लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी विश्वास के लोग हैं, उन सब को एक परमेश्वर का संतान होने के लिए यीशु बुलाता है। क्या होने के लिए? और ईश्वर का संतान होने के लिए, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी क्या बोलते हैं पंथ का हो। Amen. Amen. Do you understand what I'm talking about? क्या आपको समझ में आ रहा है क्या बात कर रहे हैं बोल के? Yes, this thing is. Yes. Oh, that's fine. This thing is bigger than religion, people. Get it? This thing is bigger than religion. अब देखिए, यीशु सब लोगों को एक परमेश्वर का संतान होने के लिए बुलाता है, तो ये धर्म से कईयों गुना बड़ा है। जिसको हम धर्म करते हैं, रीति रिवाज बोलते हैं, उससे कईयों गुना बड़ा है। Who created religion? धर्म किसने बनाया? Ask them, Sagar. I want them to give me an answer. Who created religion? बताओ तो धर्म किसने बनाया? धर्म किसने बनाया? हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, ये धर्म किसने बनाया? Huh? They are saying the people. People? Yeah. Okay, all right. On one level, yes, people. But do you think that there's another source in the spiritual world that helped people create religion? क्या आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया में एक दूसरा भी एक शक्ति है जो कि धर्म को बनाता है बोल के? आदमी बाहर दूसरा भी ऐसा कोई शक्ति है जो धर्म को पैदा कर देता है बोल के? हाँ? विश्वास करते हैं? हाँ? ये बोल रहे हैं दुनिया में दूसरा एक ऐसा शक्ति है जो धर्म को भी बना देता है। क्या इसमें भी विश्वास करते हो बोल के? Yes. Did God help man create religion? Sorry? Did God help man create religion? क्या ईश्वर ने लोगों को सहायता किया है धर्म बनाने के लिए? हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, क्रिश्चियन ये बनाने के लिए क्या ईश्वर ने सहायता किया था? Yes or no? What do you think? If God helped man create religion, why are there so many religions, and why do they disagree with each other? अब देखिए, यदि ईश्वर ने लोगों को धर्म बनाने के लिए कहा होता तो आज क्यों लोग में विभाजित हैं? क्यों एक लोग दूसरे लोग को पसंद नहीं करते हैं? क्यों एक लोग दूसरे लोग को इज्जत नहीं देते हैं? क्या सोचते हैं धर्म बनाने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को बोला होगा? क्या आपने कभी सोचा होगा ऐसा? क्या ईश्वर ने बोला है तुम हिंदू धर्म बनाओ, तुम मुस्लिम धर्म बनाओ, तुम क्रिश्चियन धर्म बनाओ? They said no. No. Well, think about it. If God created religion or religions, why are there so many different points of view if there's only one real God? अब देखिए, यहाँ एक बात समझने की, यदि ईश्वर ने दुनिया के लोगों को धर्म बनाने के लिए बोला होता तो क्यों आज इतने धर्म है? क्यों लोग एक कंक्लूजन में नहीं है कि हाँ एक ही परमेश्वर है बोलते? क्यों लोग ये नहीं मानते हैं? Is God confused? Is God schizophrenic? Is God have many personalities and they disagree with each other? क्या ईश्वर कंफ्यूज था कि लोगों को एकजुट लाने में? क्या परमेश्वर का क्या ईश्वर का बहुत सारा क्या बोलते हैं उसके दिमाग में बहुत सारा दिमाग है इसीलिए ऐसे बनाया बोल के बहुत अलग अलग धर्म बनाया? And is Christianity just another one of those religions? क्या ये एक क्रिश्चियनिटी के दूसरे धर्म के तरह एक और दूसरा धर्म है नहीं? Or did someone else help man create religions, perhaps to confuse man,
about the truth? अब देखिए, सॉरी, Did someone else in the spirit world help man to create religions to confuse man about the truth? हाँ, क्या कोई कोई ऐसा शक्ति ने लोगों को बोला कि तुम धर्म बना दो ताकि लोगों को भरमा सके, ईश्वर के बारे में भरमा सके? Who would want to confuse man about the truth? अब देखिए, कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को ईश्वर के बारे में भरमा सकता है? Huh? Someone have the answer? Who would want to क्या- confuse man about the truth? अब बताइए, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को भगवान के बारे में गलत गलत धारणा पैदा करवा देता है, लोगों के अंदर, मानव के अंदर? Someone कौन have an ऐसा चीज है? answer? क्या कोई बताना चाहता है? कौन ऐसा शक्ति है जो लोगों के अंदर भगवान के बारे में अलग अलग विचार डाल दे रहा है? Anyone have an answer? Who would want to confuse man about this and keep the truth away from him? Who would want to do that? कौन कौन ऐसा करना चाहता है कि लोगों को भगवान के बारे में गलत संदेश देके लोगों को भड़का के, ताकि लोग एक दूसरे की इज्जत ना दे? The devil, perhaps? क्या शैतान है? Huh? Would the Satan devil है? want to confuse man about the truth? या शैतान, क्या शैतान है कि लोगों के अंदर ऐसा भावना डाल दे रहा है कि लोग एक ईश्वर को ने अलग अलग भगवान को मान के तितर बितर हो जाए? Would the devil want man not to know who the true God is? And would the devil want to make up many, many gods for people to be confused about what the truth is? क्या क्या शैतान चाहता है कि लोग एक ईश्वर को ना मान के अलग अलग भगवान को माने, ताकि एक दूसरे के बीच में सहमति ना हो, एक दूसरे फूट आ जाए? We're told in the first book of Genesis of the Bible, the first book of the Bible, Genesis, that that's exactly what the devil wanted, and that's what the devil did. अब देखिए, उत्पत्ति की किताब में अगर हम देखेंगे, वहां ऐसे ही हुआ है, शैतान ने लोगों को भरमाया है। How many know about the Garden of Eden and Adam and Eve? कितने लोगों को मालूम है आदम और हवा के बारे में? हाथ उठाओ तो। आदम और हवा Yes, के बारे you में know मालूम the नहीं? story about the Garden of Eden and Adam and Eve? Yes? आदम और सृष्टि कैसे हुआ, कहानी किसको मालूम है? आदम और हवा के बारे में मालूम है? आदम की बगीचा में क्या क्या हुआ था? Okay, let me ask you a question now. अभी What religion did Adam and Eve have in the Garden of Eden? अब सुनो, जब ईश्वर ने पृथ्वी सृष्टि की, सबसे पहले आदम और हवा बना था। अब बताओ, आदम और हवा का धर्म क्या था उस समय? Does someone know what religion Adam and Eve had in the Garden of Eden? क्या आदम की बगीचा में आदम और हवा का क्या धर्म था? They don't have any religion. Okay, they didn't have any religion. Is that what you said? Yeah. They said they didn't have any religion. Correct. They didn't have any religion. Why didn't they have any religion? क्यों उन लोग के पास एक धर्म नहीं था? क्यों उन लोग के पास कोई धर्म नहीं था? कुछ दिमाग लगा सकते हो? Why didn't they have a religion? क्यों उन लोग के, क्यों जब परमेश्वर ने पहला दो व्यक्ति बना, आदम और हवा को बनाया, उन लोग कोई धर्म के लोग नहीं थे? क्यों उन लोग किसी धर्म के लोग नहीं थे? They didn't need a religion, did they? They knew God personally, didn't they? क्योंकि वो लोग को धर्म की जरूरत नहीं था, क्योंकि वो लोग ईश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। When did religion first appear in the Garden of Eden? When did religion first appear in the Garden of Eden? अब देखिए, कब वो धर्म आदम की बगीचा में शुरू हुआ? कब ये धर्म का बात है आदम की बगीचा में शुरू हुआ? तो Who brought religion into the Garden of Eden? Who began to question God and explain God and confused Adam and Eve about God? Who started that? अब देखिए, किसने आदम की बगीचा में परमेश्वर के बारे में आदम और हवा को कंफ्यूज
करने के लिए करना चालू किया? किसने उन लोगों Huh? को चालू किया परमेश्वर के बारे में कंफ्यूज करना? Anyone know? Serpent. The serpent. They are saying Yes. serpent. Yes, the serpent. Correct. Very good. And what does the Bible say about the serpent? The Bible says अब देखिए, that the serpent was the craftiest, trickiest creature in the garden. अब देखिए बाइबल कहती है सांप जो है सारे जानवर में धूर्त जानवर था। कौन सा? सारे जानवर में धूर्त जानवर कौन है? सांप है। सो सांप ने ही आदम और हवा के अंदर ऐसा विचार डाला जिसको हम शैतान बोलते हैं कि वो परमेश्वर के बारे में संदेह करने लग गया, ईश्वर के बारे में संदेह करने लग गया। Amen. The scripture tells us that there was no need for confusion because the word of God came into the garden every day and spoke with Adam and Eve directly. अब देखिए उस समय आदम और हवा को किसी चीज में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर दिन परमेश्वर खुद ही उनके साथ मुलाकात करता था, ईश्वर उनके साथ बात करता था। The word of God Yes, had a please continue. personal relationship with Adam and Eve. Continue. Did you hear me, brother? अब देखिए परमेश्वर का वचन और आदम और हवा के बीच में एक बहुत अच्छा या वी कैन फॉलो Okay. अच्छा संबंध था। समझ? So who is the आदम और word हवा of को God? धर्म की क्या जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि ईश्वर खुद ही उनके साथ था। ईश्वर, I'm sorry, Brother Cigar. I can hardly hear you, so sometimes I don't know when you're finished. Forgive me. Who is the word of God? अब परमेश्वर का वचन क्या था उस समय? कौन था? परमेश्वर का वचन कौन था? Let's go to the book of John. Someone have a Bible? या यूहन्ना की किताब लाओ तो हिंदी। Gospel of John. यूहन्ना की किताब Chapter 1. एक अध्याय, यूहन्ना की किताब एक अध्याय। Gospel of John, chapter 1 says, in the beginning was the Word, and the Word was God. The same was in the beginning with God. Watch this. And the Word of God became flesh and walked among us. अब देखिए, यहां देखिए तो आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। अब यही वचन मनुष्य रूप में देहधारी हुआ बोल के यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है। The same word of God that came into the Garden of Eden to Adam and Eve at the beginning. अब देखिए यही परमेश्वर का वचन आदम की बगीचा में आदम और हवा के साथ था। Huh? So there was no confusion when the word of God came directly to Adam and Eve. अब देखिए आदम और हवा के बीच में कंफ्यूजन नहीं था। क्यों कंफ्यूजन नहीं था? क्योंकि परमेश्वर का वचन उनके साथ ही था। परमेश्वर हमेशा उनके साथ था। The confusion began when the serpent came to Eve and said, has God really said these things? कब संदेह शुरू होने लगा? जब शैतान सांप के रूप में आदम के पास, हवा के पास आके बोलने लगा, क्या परमेश्वर ने तुम्हें कुछ बोला है कुछ चीज नहीं करने के लिए? Maybe he meant something else. Maybe he meant something different. Maybe there are many ways, many religions. अब वहां वो उसने सोचा होगा, हो सकता है वहां बहुत सारे ईश्वर है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे चीजें है बोल के। And this is what man believed, and this caused man to fall away from God.
अब देखिए यही चीज से आदमी अभी तक जूझ रहा है, यही चीज से आदमी अभी तक कह रहे जूझ के परमेश्वर से अलग हो रहा है। And guess what? It's no different today. Thousands of years later, it's no different today. The same confusion that the serpent brought is still confusing people today. अब देखिए आदम की बगीचा में जो सांप ने हवा को कंफ्यूज किया था, हवा के मन में संदेह डाला था, आज वही संदेह आज हजारों लाखों लोगों के बीच में वही संदेह है। क्या परमेश्वर अलग है? क्या परमेश्वर का कोई ऐसा धर्म है जहां हम सच्चा परमेश्वर को ढूंढ सकते हैं? ऐसा कंफ्यूजन लोगों के अंदर डाला है, वही चल रहा है। But the same word of God is available to men today. लेकिन वही परमेश्वर का वचन आज लोगों के बीच में अवेलेबल है, जिससे हम सच्चा परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं। Christ is that word, and he wants us to have a personal relationship with him, just like Adam and Eve had before the serpent came. देखिए वो वचन आज हमारे साथ है, वो वचन है प्रभु यीशु मसीह। जैसे आदम और हवा के साथ शैतान वो सांप आने से पहले आदम और हवा परमेश्वर के साथ संगति था, ऐसे ही संगति यीशु चाहता है हम उसके साथ करें। And this is for all men, from every race, from every language, from every culture, from every religion. This is for all men. Christ wants to have a personal relationship with each and every person. अब ध्यान में सुनो, यीशु मसीह हर एक जाति के लोगों, हर एक धर्म के लोगों को परमेश्वर के साथ एक संबंध स्थापित करना चाहता है। यही पूरे दुनिया की लोगों की बुलाहट है। So let me ask you this question and I'll finish this morning. या मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए तब मैं खत्म करता हूँ। Yes. Do you have a personal relationship with Christ through the Holy Spirit? क्या आप आज आपके पास परमेश्वर के साथ आप संगति रखते हो? परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है आपका? ईश्वर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है कि नहीं आपका? Or are you just a religious Christian? Is your religion the Christian religion? Which is it? Do you know Christ personally, or do you just believe in the Christian religion? अब देखो यह क्वेश्चन है, क्या आप यीशु को व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं या तो खाली आप चर्च में प्रार्थना करने के लिए आते हैं? Well, I'm here to tell you today that the Christian religion is no better than any other religion. मैं आज आप लोग को बता रहा हूं, यदि आप क्रिश्चियन धर्म में विश्वास करते हैं तो क्रिश्चियन धर्म कोई और धर्म से अच्छा नहीं है, बराबर का है। We don't know Christ even through the Christian religion. We have to know Christ personally by being born again of the Holy Spirit. अब देखिए हम लोग क्रिश्चियन बन के यीशु के बारे में जान नहीं सकते हैं जब तक हम यीशु को क्या बोलते पवित्र आत्मा की शक्ति में उसे ग्रहण नहीं करते, जब तक यीशु को अपना परमेश्वर नहीं मानते। This is a personal and supernatural thing. ये व्यक्तिगत और अलौकिक चीजें हैं, प्रभु यीशु को पूरे दिल से पर व्यक्तिगत तौर से जानना। You can be religious in the flesh. You can be religious as an ordinary man. Everybody's religious in some way. आप अपने शरीर में धार्मिक लोग बन सकते हैं, आप अपने शारीरिक तौर पे धर्म कर्म करने वाले लोग बन सकते हो। But to know Christ personally, to know the true God personally, to be born again of the Holy Spirit is a supernatural act that only God can do. अब देखिए, लेकिन आप क्रिश्चियन बन के आप चर्च में आके क्रिश्चियन बन के आप अपने शरीर को एक धर्म कर्म में चलाने वाला बन सकते हो, लेकिन प्रभु यीशु के साथ अच्छा संबंध रखने के लिए
आप पवित्र आत्मा की शक्ति में प्रभु यीशु को ग्रहण करके नया जन्म पाने की जरूरत है। So I ask you this morning as I close my talking, have तो you मैं इस been born again of the Holy Spirit? Do क्या you आप know Christ personally? क्या आप पवित्र आत्मा में पूरा नया जन्म पाए हैं? क्या आप यीशु को व्यक्तिगत तौर से जानते हैं? If not, then going to church is not going to help. यदि आप यीशु को व्यक्तिगत तौर से नहीं जानते हैं, तो चर्च आके आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। If you're not born again of the Holy Spirit, then going to church is the same as being in another religion and going to that religion's temple. No different. यदि आप पुनर्जन्म नहीं पाए हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार नहीं किए हैं, तो चर्च जाके आना आपके लिए एक धर्म के समान है, जो कोई चीज करना। Amen. This is a personal relationship with God. अब ये क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी का वास्तव अर्थ है परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध। क्या है? Amen. और So I परमेश्वर के will साथ leave it to अपना Pastor व्यक्तिगत Cigar. संबंध। ये कोई I will धर्म leave नहीं it है, to Pastor ईश्वर के Cigar. साथ एक संबंध है। I will leave it to Pastor Cigar to take you into the next step if those of you have not been born again and received the Holy Spirit. That's what you need to do. Coming to church is not enough. अब देखिए, चर्च में आना ही पूरा नहीं है। चर्च में आना तो दूसरे धर्म में गया जैसे ही है, लेकिन हमें जब तक प्रभु को व्यक्तिगत रूप पे उसको ग्रहण करके अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता बोल के जब तक हम ग्रहण नहीं करते हैं, जब तक हम नया जन्म नहीं पाते हैं, तो ये चर्च में आना, धर्म कर्म करना, ये सब व्यर्थ की बात है। You must be born again. You must be born again of the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होने की जरूरत है। Amen. Amen. Praise the Lord. Thank Brother you. Cigar, I'll leave it to you now, and you can find out among your people who needs to be born again, who wants to be born again, and receive the Holy Spirit. You and your ministers can pray for them. But they need to know. They need to know that they know that they know that they are born again, and they need to come to know Jesus personally. अब देखिए, आपको प्रभु यीशु को व्यक्तिगत तौर पे जानने की जरूरत है। जब तक हम यीशु को व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानते हैं, तो चर्च आना और मस्जिद जाना कोई फर्क नहीं है। तो शैतान हमारे बीच में एक कंफ्यूजन लाया है, बहुत सारे धर्म को पैदा किया है, लेकिन धर्म कर्म यदि हम वही धर्म के तरह, वो लोग भी मंदिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का कोई वहां अस्तित्व नहीं है। इसी तरह यदि चर्चा के करेंगे, हमारे जीवन में भी ऐसा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। Yes. Amen. I love Amen. you all. Thank you for taking the time to listen. I enjoyed meeting you, and I hope to meet you one day face to face. Okay, thank you very much. Thank you very much, Dr. Danny, for giving us this time, and thank you for the wonderful this gospel message. I wanted you to preach today gospel message only. Thank God you spoke. Amen. Praise God, brother. I love you. God bless you. Okay, thank you, sir. Have a good day. Okay, thank you, sir. Thank you All very right, much. bye-bye.